Okay. Now we'll take case second. Okay. So case second means we have to now short circuit this one. Okay. So if we short circuit this one, so our new circuit will be this will be 3 ampere. Okay. So this is 4 ohm and this is 8 ohm. Okay. Now I want current in this 4 ohm. Say this voltage is V2. Okay. So now this 4 ohm and 8 ohm are parallel. Okay. So I say this current is I1. Say this current is I2. So I can calculate what is I1 by current division. So current division इसमें मुझे current चाहिए. So I will take resistance this one. Okay. So 8 divided by total resistance 8 plus 4. 8 plus 4 12. Okay. 12 Into sir. current कितने आ रहा है? Total current कितना आ रहा है ये वाला? 3 3 ampere. So this become okay 4. So this become 2. Current become 2 ampere. 2 ampere current is coming here, 1 ampere current going there. Okay, in this case. Now I want this voltage. Okay, so this voltage, say this is all given V2. So V2 will be current into 4. So 4 into 2, this become 8 volts. Okay, so our total V will be V1 plus V2, that is 2 plus 8. Okay, that is 10 volt. So this is your answer. Okay, so this way if there are multiple sources you can apply superposition and you can solve the circuit. Okay, so let me solve a few more problems. So now you have to do, everyone is supposed to do and tell me answer. Okay, I'm doing similar problem. So now this is 8 ampere. Okay, so this is 2 ohm, this is 3 ohm, and we have one more 5 ohm resistance. Okay, and this is the battery plus minus, this is given 40 volts. Okay, find here V naught, calculate. So V naught will be V1 plus V2. कैलकुलेट करो और बताओ मुझे क्या आएगा आंसर. So V1, say V1 is for because of this one 40 volts. Okay, so V1 कितना आएगा? तो V1 के लिए ये ओपन हो जाएगा. Now I'm not drawing again and again. ये ओपन, तो करंट यहाँ से जाएगा सीधा. So this is series 5 3, this series. Okay, 8 10 10. So that means current is 40 divided by 10. Okay, and the resistance is 2. So current into this one. So I think 8 volt. सबका ये आ रहा है? Yes sir. Okay. Yes sir. Now V2. So V2 means 8 ampere. Okay. Now this will be short circuited. So this is short circuited, then this is 5 ohm and this is another 5 ohm. Both are parallel. So half of current will divide. Okay. So current will be 4 ampere. Okay. ओपन सर्किट क्या होगा ना 8 एम्पीयर को सर? अभी नहीं, जब इसको कर रहे हैं तो इसको डीएक्टिवेट किया तो ये ओपन था. Yes. तो ये ओपन था तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ ही नहीं, सारा करंट यहाँ गया. ओके ओके सर. ओके. नाउ यू हैव टू डू दिस वन. ओके, नाउ इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे. ओके, सो दिस 4 एम्पीयर 8 एम्पीयर 4 एम्पीयर को ईयर 4 एम्पीयर को ईयर. ओके, दैट मींस हियर 4 into 2 अगेन 8 volts. सो V0 कितना हो गया? 16 volt. यस सर. बाकी लोग भी बोलो, सबका आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ये हो गया दो सोर्स का. Okay, and now we'll take सर one इसमें example. हाँ, V1 कौन सा पोटेंशियल लिया हमने? वो कोई भी ले लो, उसमें कोई नहीं है. V1 मैंने लिया 40 वोल्ट्स के कारण. तो सर हमने जो 8 वोल्ट कैलकुलेट करा है ये किसके अक्रॉस निकला? ये 2 ओम के अक्रॉस. ओके. और कोई डाउट? No, sir. हाँ सर हाँ एक बोलिए. बार एक्सप्लेन करोगे क्या? V2 वाला तो सर, कैसे V2 वाला निकाला? इसको अच्छा इसको वापस मेरा एक्सप्लेन. फास्ट हो गया V2 वाला. V2 वाला, ये वाला. ओके, हाँ, तो V2 के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दो. ठीक है, अभी इस करंट सोर्स में ये 5 ओम इधर इधर है और ये 5 ओम इधर है, दोनों पैरेलल है. इसको वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. दिस इज द करंट सोर्स. ओके, so this is 5 ohm and this is 3 plus 2. This is 3 and this is 2 and this is your 8 ampere. यही तो है, ये इसके पैरेलल है. Okay, 3 and 2 and this is also parallel to this source. This is parallel to source. Now 8 ampere current is coming here. Okay, now this is total 5. This is also 5. So 4 will come here and 4 will come here. Okay, so 4 ampere current is coming here. Okay, 4 into 2, 8 volts. You want voltage across 2 ohm. This become 8 volt. Is it clear? Shall I explain more? Hello. and sir then V0 V2 मतलब V2 पे तो 4 आया ना, मतलब करंट. करंट तो 4 आया. वोल्टेज कितना हाँ आया? तो 8 आया. हाँ तो 8 आया. V2 8 आया. हाँ तो then अच्छा then 8 plus 8 16. 8 plus 16 हो गया ना. ओके सर. ये V2 क्या ओके है? सर. V2 is because of two sources. पहले हमने फर्स्ट सोर्स के लिए कैलकुलेट किया. तो फर्स्ट सोर्स के लिए हमारा 8 वोल्ट्स आया. ओके, जब मैंने इसको ओपन कर दिया था, जब इसको ओपन कर दिया था तो करंट यहाँ से गया पूरा. ठीक है, तो ओके सर. सिंपल सीरीज सर्किट. ओके आप सर. ड्रॉ करके देखो. एंड सेकंड केस, इसको मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया ना. दीस टू सर्किट्स आर पैरेलल, सो पैरेलल में करंट डिवाइड होगा. आधा करंट यहाँ जाएगा, आधा करंट यहाँ जाएगा, बिकॉज आई करंट इज कमिंग, बोथ रेजिस्टेंस आर सेम. सो 4 विल गो हियर, 4 विल गो दिस साइड. दैट मींस 4 into 2 8. ओके, अच्छा सर, एक चीज है कि how you see that these two are parallel because voltage between 3 2 and 5 are same. ओके, सी हाउ पैरेलल. भी ये सोर्स क्या है? इसका ये टर्मिनल है. Yes sir. ये टर्मिनल है, दोनों कनेक्टेड है ना. Yes, इसको sir. पैरेलल तो बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को. Okay, सिमिलरली sir. ये वाला, ये रेजिस्टेंस और ये हाँ. पूरा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस तो जुड़ा हुआ है. एक सो ये भी तो पैरेलल ही है. Okay sir. ओके, Yes sir. Yes sir. बोथ सेंटर कनेक्टेड ना. ओके, Okay sir. ये 5 है. सो नाउ करंट विल डिवाइड 4. Okay sir. और सर ये जो अगर मतलब एम्पियर करंट होता है तो उसको ओपन करते हैं और वोल्टेज होता है तो उसको शॉर्ट करते हैं. शॉर्ट सर्किट करते हैं. अगर ओके सर. वोल्टेज सोर्स के कारण कर रहा है, जो करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे. ठीक है, और करंट एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ओके सर. सब आ जाएंगे, तो उसमें दो तीन सोर्स आ जाएंगे. So one circuit is this one. Okay, so this is circuit. 2 ampere current is given. Okay, here 8 volt source is there, and here 6 volt source is there, plus minus 6 volts. Okay, so now we have total 3 sources. Okay, now I want to calculate current in 8 ohm.
ओके कैलकुलेट। बाकी दो रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें 2 ohm. Okay, this is 2 ohm. This is given as 6 ohm. सर ठीक है। सुपर नोड लगाएंगे सर? सुपर नोड लगाएं सर? नोड नहीं, इसी से करो, सुपर पोजिशन से। ओके सर। सुपर नोड कहाँ होगा? सुपर नोड में बैटरी होता है दो नोड्स के बीच में। यहाँ बैटरी कहाँ है? 2 नोड्स के बीच में, दो नॉन रेफरेंस। क्या निकालना था सर इस प्रॉब्लम में? करंट निकालना है आई, करंट आई निकालना है 8 ओम में कितना करंट जा रहा है। ओके सो यहाँ पे 3 सोर्स हैं, तो आपका आई क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके सो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 8 वोल्ट के करंट, ठीक है, इसके करंट। सो 8 वोल्ट के निकालना है, तो बाकी सोर्स को क्या करना है? बाकी सोर्स को टर्न ऑफ करना है। तो बाकी कौन कौन से सोर्स हैं? एक तो ये सोर्स है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। करंट क्या हो जाएगा? ओपन। तो ये ओपन हो गया, तो खुल जाएगा, यहाँ करंट 0 हो जाएगा। तो करंट क्या यहीं से जाएगा, यहाँ से शुरू होगा करंट, यहाँ से करंट शुरू होगा और फिर यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, और फिर ये करंट आके, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया अभी। क्लियर? हाँ सर। ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट स्टार्ट हो यहाँ से, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ केस 1 में ओनली ड्यू टू 8 वोल्ट, सो ओनली ड्यू टू 8 volts battery. Okay, so now, okay, so this is becomes 6 ohm, 2 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 8 ohm. Okay, and this is your battery, 8 volt plus 3/8 एम्पीयर plus minus. Okay, अभी ये तो मैंने ओपन कर दिया ना, ये वाला तो मैंने ओपन कर दिया, जो करंट सोर्सेस को मैंने ओपन कर दिया। तो ये करंट कैसे यहाँ से स्टार्ट होकर ये जाएगा, इधर आके इधर आएगा, ठीक है। तो I1 कितना हो गया आपका? तो 1/2 एम्पीयर। तो 8/6 + 2 + 2, तो ये 8 + 2 + 6 16, रेजिस्टेंस 16 है, वोल्टेज है 8, तो करंट कितना हो गया? वोल्ट्स डिवाइड बाय 16, तो कितना हो गया? हाफ। ओके, हाफ एम्पियर, दैट मींस 500 मिली एम्पियर। फर्स्ट केस क्लियर है? यस सर। नाउ कैलकुलेट सेकंड। ये करंट कहाँ है? करंट की डायरेक्शन क्या है? ये कहाँ पर है? दिस इज राइट टू लेफ्ट। ओके, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट। दिस इज फर्स्ट केस। केस सेकंड में भी ऐसा ये सेम ही सर्किट रहेगा, खाली ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 6। ओके, और ये ओपन हो जाएगा, करंट जाएगा यहाँ से। अब करंट यहाँ उल्टा जा रहा है, 8 2 10 16, अगेन 16, रेजिस्टेंस 16, तो I2 कितना हो जाएगा? I2 3/8 एम्पीयर। I2 6/16. Okay, that means 3/8. Okay, so that means this become 0.375, that means 375 milliampere. आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। थर्ड केस में 0.25 आ रहा है। सेकंड केस, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में, अब थर्ड केस में केस थर्ड, ओके, केस थर्ड में ओनली ड्यू टू 2 एम्पीयर को 2 एम्पीयर करंट सोर्स, 2 एम्पीयर सोर्स। ओके, सो क्या हो जाएगा? ये बैटरी इधर आ जाएगा 2 एम्पीयर। ओके, बाकी सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब क्या होगा? ये करंट स्टार्ट होगा 2 एम्पीयर करंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाएगा वापस करंट यहाँ आना है, यहाँ से शुरू होगा, इधर होके वापस यहाँ आएगा और एक पोर्शन यहाँ पे होगा। तो अगेन ये दोनों सर्किट पैरेलल हैं। ओके, सो आई एम ड्राइंग दिस सर्किट अगेन।
सो ये आपकी बैटरी है, ओके, 2 एम्पियर, ओके. So this resistance is parallel to this battery, 2 ohm. Okay, and this 8 6 also, this is also parallel. ये 14. दो स्टार्ट हो रहा है. Okay, so this is 8 and this is 6. Again these are parallel. Okay, now I want current here in this, what is here. Okay, so again you can apply current division. 2 ampere current is coming here. Okay, total current. So say this is I3, I want I3, this one. Okay, this say the something, this is I3 dash something else. Okay, so I want this current. Okay, so I can write now this current will be I3 will be, okay, these are parallel, so 2, okay, divided by 16 into 2. So this become 1 by 4. Okay, so 0.25, that means 250 milliampere. कितना? 250 milliampere. Yes, sir. Ampere. 250 milliampere. Okay, so इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट टू राइट. ओके, हाँ, और ये उल्टा था, ये उल्टा था. यस सर. सेकंड वाला उल्टा था. सेकंड वाला सोर्स सीधा था ना, तो करंट ऐसे था. तो कितना हो गया टोटल करंट? I इक्वल टू, सो 500 प्लस माइनस 375 प्लस 250 आ गया 375 आ गया. यस सर. मिली एम्पियर आंसर. सर ये करंट डिवीजन जो हमने लगाया है तब इसमें 2/16 कैसे आ गया? बी हाँ सर, I3 का जरा रिपीट करिए. अब ये करंट यहाँ से 2 एम्पियर शुरू हो रहा है. ठीक है, हमको चाहिए करंट इसमें. ठीक है, जब इसमें चाहिए तो रेजिस्टेंस लेंगे इसका, तो ये रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 R1, ये R1 या R2 है, तो R1 2 प्लस R2 14, तो R1 प्लस R2 14 इंटू 14 प्लस 2 16. टोटल करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर. ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला I1 चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ R2 प्लस R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट. ठीक है, अभी मुझे चाहिए करंट इसमें, सपोज ये R1 है. ठीक है, इसमें करंट चाहिए, तो ये इसमें तो रेजिस्टेंस का होगा. ये I1 है या I2 है. ठीक है ना, तो मुझे चाहिए इसमें करंट, तो रेजिस्टेंस वाला ये वाला हो जाएगा उल्टा इसका. अगर I2 चाहिए तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 का, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट. अभी ये पैरेलल नहीं है, अभी फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है. ठीक है, तो मुझे इसमें चाहिए तो रेजिस्टेंस का 2 ओम. ओके, टोटल करंट कितना है? 2. ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2, तो ये कितना है? 14 प्लस 2 16. पीछे का रिवाइज करते चलो. इसमें करंट डिवीजन के वी हैव सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट डिवीजन बार बार यूज होगा है, इसको अच्छे से करना है. क्लियर है? यस सर. चले आगे. यस सर. अरे जो बोल रहा था उसी को आंसर देने दो, इसने डाउट पूछा. ओके, now we'll solve one problem which came in net exam. Okay, CSIR net June, CSIR net, okay, June 2022 20. Okay, so they have given one battery of 20 volts. Okay, here we have 100 ohm resistance. Okay, there is one more 150 ohm resistance. Okay, and there we have one more 100 ohm resistance. Okay,
here we have 200 ohm resistance. Okay, now what they are saying in this question, so they are given two voltmeters. Okay, voltmeter 1, voltmeter 1 whose internal resistance is 2 mega ohm, high resistance. Okay, and voltmeter 2 whose internal resistance Ri is equal to 0.1 kilo ohm, that is 100 ohms. Okay, so now अब क्या कर रहा है ये कि ये वोल्टमीटर ले रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर. ओके, सर्किट में जितना वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, ओके, उतना ही वो वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग करेगा. ओके, सो दिस इज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर. ओके, एंड दिस इज लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर. सो ये क्या कर रहा है, इस वोल्टमीटर को यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, और वोल्टेज मेजर कर रहा है. सर्किट में कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज मेजर कर रहा है इसको यहाँ पर. ओके, सो उस वोल्टेज को बोल देते हैं VA. ओके, सो ये वोल्टमीटर A, ये वोल्टमीटर B. ओके, सो जो वोल्टमीटर A है, ओके, वोल्टमीटर जो A है, दैट इज मेजरिंग वोल्टेज हियर VA. ओके, एंड जो वोल्टमीटर 2 है, दैट इफ यू मेजर दिस, इसको लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये इसको वोल्टेज मेजर करेगा VB. ओके, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ VA वर्सेस VB. ओके, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है. क्वेश्चन क्लियर है? सर यस सर. दो वोल्टमीटर है, उस इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अभी वोल्टेज बैटरी लगा हुआ करंट फ्लो हो रहा है, इसका कुछ वोल्टेज है, इस वोल्टेज को वोल्टमीटर ए से मेजर कर रहा है, फिर इसी वोल्टेज को वोल्टमीटर बी लगा के मेजर कर रहा है. तो दोनों की रीडिंग में पूछ रहा है क्या डिफरेंस है, दोनों की रीडिंग में डिफरेंस क्यों आएगा, कि दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है. ओके, सो नाउ विल कैलकुलेट व्हाट इज वोल्टेज VA. ओके, सो VA पहले मेजर करेंगे. तो VA मेजर करने के लिए वोल्टमीटर A को यहाँ लगाना पड़ेगा. ओके, सो वोल्टमीटर A को यहाँ लगाना पड़ेगा, और वोल्टमीटर A का रेजिस्टेंस कितना है, हाई 2 मेगा ओम, तो ये यहाँ पे लगा दिया 2 मेगा ओम. ओके, ये वोल्टमीटर है अपना, प्लस माइनस वोल्टमीटर. ओके, वोल्टमीटर लगाने की जरूरत नहीं है. तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में हमेशा पैरेलल आएगा, जिस जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पैरेलल आएगा. ओके, सो वोल्टमीटर लगाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज नाउ पैरेलल टू दिस वन. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है. तो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच करंट इज कमिंग हियर. ओके, तो यहाँ पे करंट पहले यहाँ से, ये भाई यस सर, रेशियो V by VB है, VB by क्या क्वेश्चन, VA by VB. ओके, VA by VB निकालना है हमको. सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग VA. तो अभी वी वांट, हाँ 2 आ रहा है 2 कैसे आएगा? सर. एक सर ये हाई वाले में आइडियल केस ले लेना अप्रोक्सीमेट करने के लिए, और सेकंड केस में आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा. सो विल सी इट. ओके, सो नाउ ये करंट आ रहा है इधर. ओके, और ये हमको पता करना है करंट यहाँ पे कितना आ रहा है. ओके, तो सबसे पहले तो टोटल करंट कितना है, टोटल करंट IIT कितना है. सो पहले सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 100 ओम. ओके, प्लस 200. ये 100 और 2 मेगा ओम कितना हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा ना इसमें. जीरो बन जाएगा. कितना आ जाएगा, सॉरी सर 100 ही आ जाएगा. 100 ही आ जाएगा, इससे 100 ही आ कम- जाएगा क्योंकि पैरेलल में है. ओके, 1/100 प्लस 1/2 मेगा ओम 2 पावर 6 ओम. ओके, तो ये टर्म नेग्लिजिबल है इस कंपेयर टू इस टर्म के 1/R. तो जब को आपका R आएगा वो 100 ओम ही आएगा. समझ आया? इसीलिए ये जो वोल्टमीटर है इसके रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई जो हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है दैट विल गिव यू एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इसको यहाँ जोड़ने से इसकी वैल्यू में इसको अफेक्ट ही नहीं कर, सर्किट को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है. अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, वापस 100 ओम ही आएगा. दैट मींस जिसका रेजिस्टेंस इस सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है.
तो जो एक्चुअल वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है उसी को मेजर करेगा, इसलिए ओके दैट्स व्हाई वी यूज हाई वोल्टमीटर रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 100 ohms ओनली। ओके, और ये 100 ohm, ये 200 ohm, 300 ohm, 300 और ये 150 ohm पैरेलल है। इस 150 ohm इज पैरेलल टू इस 100 300 ohms। ओके, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। total सो 100 प्लस 150 100 इंटू 300, ये हो गया 450। 450 ओके, सो ये 3, ये 100। ओके, सो कितना हो गया 200 ohm रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नाउ ये टोटल करंट कितना हो जाएगा, IT 20 अपॉन वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस 200। ओके, सो 1/10 एम्पियर। ठीक है, अभी हमको यहाँ हमको ये करंट नहीं चाहिए, हमको ये वाला करंट चाहिए, ये वाला। से दिस करंट इज IA। ओके, सो IA कितना हो जाएगा, IA हो जाएगा ये रेजिस्टेंस और Current ये division पूरा पे? रेजिस्टेंस पैरेलल है, और ये पूरा रेजिस्टेंस कितना अभी मैंने मेजर किया, ये दिस इज 300 एंड दिस 150, बोथ आर पैरेलल। ओके, बहुत पैरेलल है, तो अगर इसमें करंट चाहिए मुझे, इस सर्किट में करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस का लेना पड़ेगा 150 का। सो 150, ओके, दिस इज 200 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 300, 0.33 आ रहा है 450, करंट 450, और करंट कितना आ रहा है हमारा 1/10। 0.1। ये स्टेप समझ में आया आपको? हाँ सर। yes भी ये रेजिस्टेंस तो है ही नहीं अभी, इस केस में तो है ही नहीं। ओके, यहाँ पे कितना है 100 ohms है, 100 प्लस 200 300। ओके, और 300 के पैरेलल है 150। ओके, तो रेजिस्टेंस लेंगे 150, अगर इसमें करंट चाहिए तो 150 डिवाइड बाय टोटल 450, और टोटल करंट कितना आ रहा है 1/10। ओके, सो ये कितना हो गया 3, 1/30 एम्पियर। और VA क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 100 ohm, करंट पता ही है हमको IA इज 130। ओके, IA into 100। ओके, सो 1/30 into 100 करेक्ट है, तो ये कितना जाएगा 10/3, कुछ गलती कर दी क्या, 1/10 है सॉरी। सो हाँ 1/30 तो है, IA 130 into 100। okay, so this become 10/3, 10/3, this is the VA value। okay, so VA हमारे पास आ गया 10/3। now we have to calculate V2 भी सेम केस है, केस सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ohm की जगह है, अब हम दूसरा वोल्टमीटर ले रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ohm। ओके, अब वापस कैलकुलेशन करो पूरी, ऐसे कैसे, ठीक है। अभी नाउ दिस रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, ये 100 कितना हो जाएगा 100 50 हो जाएगा। ठीक है, पहले अब 50 टोटल में 50 कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 100 ohm तो वैसा का वैसा ही है, ये 100 तो वैसा का वैसा ही है, ये हो गया 50 प्लस 200 250, 3 के 250, ये 150 ये ऐसा कैसा ही है। सो 150 और ये हो गया 250 नाउ। ओके, सो 100 प्लस 150 इंटू 250, ये कितना हो जाएगा 400। ओके, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ओके, दिस बिकम 375 4। ओके, तो ये हो जाएगा 775/4। ओके, रेजिस्टेंस इज 775/4 ओम, और करंट कितना हो जाएगा अभी, करंट IT डैश बोल देते हैं इस टाइम पे। ठीक है ना, तो करंट कितना हो जाएगा हमारा 20/4 775। ओके, इसको सॉल्व कर दो, सो ये 4 1 1 1। ओके, सो 16/155 एम्पियर। अब की टोटल करंट चेंज हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये करंट यहाँ पे अब हमको कैलकुलेट करना है ये करंट। ठीक है, और ये करंट भी अब जो निकालेंगे वो भी हाफ ऑफ डिवाइड होगा। पहले क्या हो रहा था, पहले केस में यहाँ 2 मेगा ओम था तो यहाँ करंट जा ही नहीं रहा था,
तो पहले ये करंट निकालो और फिर ये करंट भी दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो इस करंट का भी आधा निकालना है हमको, ठीक है। 3 by से दिस इज 95 आई से दिस इज आई बी डैश, हमको निकालना है आई, सो आई बी विल बी आई बी डैश डिवाइड बाय 2। क्लियर हो रहा है? अब की अब करंट आ रहा है अपने पास 16 by 155 रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस लेंगे 150, 150 by कितना 150 by 775 by नहीं ये रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 400, 775 by और करंट कितना है 16 अपॉन 155, और इसका भी हाफ करना है हमको। क्लियर है? यस सर। भी ये कितना है आपकी 50 + 250 ऑन 400, तो रेजिस्टेंस सामने वाला, सर हाँ सर टोटल होगा ना, पैरेलल वाला का भी तो रेजिस्टेंस आएगा। हाँ, तो किया है ना भाई, ये 50 + 200 250 + 150 400, ओके 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 ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, दिस वन कैंसिल हो गया ये, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, ये 5 3 बार इसमें 31, सो दिस इज 8, कितना आ रहा है भाई बताओ, बिल्कुल ये अगेन 5, सो 3 अपॉन 155, ये आ रहा है 3 अपॉन 155 करंट, कितना आना चाहिए, हाँ सही आ रहा है 3 अपॉन 155। अब हमको चाहिए वोल्टेज यहाँ पर VB, सो VB कितना आएगा, VB आएगा आपका 155 ओके इंटू 100, हाफ करना है ना सर? हम्म, कुछ नहीं सर, कुछ। सो कितना हो जाएगा ये, तो 3 ओके, दिस इज से 20 और दिस इज 31, तो 60 अपॉन 31, ओके। नाउ वी वांट VA अपॉन VB, okay, so VA is 10 upon 3 and this is 60 by 3, 31 upon 60, okay, so 31 upon 18 and this will give you 1.73, ये आपका आंसर है। गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो इंस्ट्रूमेशन से रिलेटेड है, जो इंस्ट्रूमेशन पार्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का उससे रिलेटेड है, बट क्योंकि अभी हम लोग ये सब सीख चुके हैं, सर्किट रेजिस्टेंस निकालना, करंट डिवीजन, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये क्वेश्चन को यहीं पे डाल दूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अब सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन TFIR में आ रखा है, ठीक है, वो भी अभी किसी ने सॉल्व नहीं किया है। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, उसमें क्या है, बस आपको इक्वेशन की फॉर्म में निकालना है, मेथड बिल्कुल ये का ये फॉर्म को फॉलो करना है, ठीक है। उसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, क्योंकि नंबर्स नहीं दे रखे हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, तो ट्राई करना है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है TFIR में, वो भी हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया। Now we'll start source transformation. कितना टाइम बचा हुआ अभी? Okay, टाइम है तो source transformation, okay. So before we discuss what is source transformation, okay, so what is source, okay, so sources, there are two types of sources, okay, two types of sources. One is independent sources and other is dependent sources, okay. So independent sources which provide voltage and current in the circuit, okay, so that is called independent sources. Dependent sources are these are sources which are used for modeling of devices like op-amp को op-amp करना है या फिर ट्रांजिस्टर करना है, उसकी मॉडलिंग के लिए जो sources होते हैं उनको बोलते हैं dependent sources, okay. So for the moment I am not discussing these dependent sources, okay, we'll discuss some other class. So I am discussing now independent sources, okay. So independent source मतलब
ये होगा वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, सो ये जो हम वोल्टेज यूज करते हैं, दिस इज प्लस माइनस Vs, okay, this is a voltage source, this is independent voltage source. Okay, similarly what you're using this current, okay, this is called independent current source. Okay, अब इनको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों बोलते हैं? ओके, अब इसमें ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है प्रैक्टिकल। ओके, सो आइडियल ये भी होगा, आइडियल और प्रैक्टिकल। ओके, आइडियल और प्रैक्टिकल। अब आइडियल सोर्स क्या होता है? आइडियल सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स, वो वोल्टेज सोर्स दैट विल ऑलवेज प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। सपोज अगर इसके अक्रॉस में मैं एक रेजिस्टेंस RL ऐड कर दूं, ओके, RL, okay, so say here voltage is VL. Okay, so because this source do not have any internal resistance, okay, तो इसके जो across load रहेगा, okay, it will provide same constant voltage across this load, चाहे यहाँ का resistance कुछ भी हो। okay, मतलब IL. Okay, so now if you change the resistance, okay, what will happen? This IL will change, but okay, but this voltage will not change. Okay, so regardless of this in this load resistance, this source will always provide you the same constant voltage. Okay, that means this Vs do not depend on IL. IL change hota rahega, but VL will be constant. Okay, so if I plot this graph, okay, suppose this is my सर हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। सर रिपीट सर, मिस कर गया। हाँ, so I'm saying this is ideal source, ideal voltage source. Okay, so ideal voltage source मतलब जिसका internal resistance 0 है। Okay, and these type of sources always provide constant voltage across the load. Okay, so अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं मैं, okay, so this will always give VL equal to VS. Okay, चाहे करंट कितना भी हो, चाहे आप करंट की वैल्यू कितना भी चेंज हो जाए, but this source will give always constant voltage across this load. Okay, so this is called ideal source, ideal voltage source. Okay, now if I take practical source, okay, so practical source क्या होगा? जिसका कोई सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। So this is your Vs, okay, and it is a series or internal resistance, and this is your RL. Okay, now if I write equations, this is current IL. Okay, now if I apply KVL, okay, so by writing, and this is my VL, okay, plus minus. Okay, so if I write KVL, so I can write my VL will be Vs minus RS IL. भी यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, सो टोटल वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज जो बचा हुआ यहाँ पर आएगा। ठीक है, VL कितना होगा? Vs माइनस IL RS। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है? रेजिस्टेंस RS, IL RS. Okay, so now you can see this load, this voltage VL depends on IL. Okay, जैसे जैसे IL बढ़ता जाएगा, okay, वोल्टेज क्या होता जाएगा? VL क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। Okay, so suppose now if is RS 0, means VL equal to VS, ideal case. Okay, ये तो अलग हो गया। But now suppose I am changing now this equation. Okay, so suppose IL 0, so IL 0 का मतलब क्या है? IL 0 कब होगा?
जब ये ओपन सर्किट है दैट मींस R इज इनफाइनाइट, आई वांट टू मेक IL 0, IL 0 कब होगा जब इसको ओपन कर दें, दैट मींस R इज इनफाइनाइट, तो IL 0 कर देंगे तो VL क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू VS, ओके, तो ये VL इक्वल टू VS हो जाएगा, ओके, ये पॉइंट हो जाएगा, ओके। और अगर मैं यहाँ पर VL को 0 कर दूं तो if VL 0 then my IL will be VS upon RS, ओके। तो इसको अगर इस ग्राफ को इस लाइन को प्लॉट करूं तो दिस इज द ग्राफ, ओके। सो हियर VL equal to VS and here we have IL equal to VS upon RS, okay. So you can see this voltage VL changes with the load current, okay. लोड करंट पे डिपेंड करती है कि सर्किट में कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये लॉस हो रहा है ना, जितना करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उतना ही कम VL आएगा सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ मिनिमम आ रहा है लोड। VL यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे VS है, तो यहाँ पे 0 आएगा, जब करंट इतना हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द वोल्टेज, ओके, डिपेंड्स ऑन द लोड करंट, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल सोर्स। दिस इज आइडियल, दिस इज प्रैक्टिकल। सो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ओके। नाउ सेम थिंग, अब आगे चले, ये क्लियर है? हाँ सर। ओके। नाउ current source, okay. So current source, this is my current source, okay, and this is we have resistance RL, okay. Say this is IS, अगर इसके अक्रॉस में कोई रजिस्टर नहीं है तो जितना करंट यहाँ आ रहा है your IL will be always equal to IS, okay, क्योंकि और तो कोई करंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर आइडियल करंट सोर्स, ओके। RL कितना भी हो, ओके, यू विल गेट ऑलवेज कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड आइडियल करंट सोर्स, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल? सो प्रैक्टिकल में क्या हो जाएगा, ओके, यू हैव टू ऐड वन मोर रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होगा, RP, okay. Now if I want to write, and this voltage is VL, okay, across this is RL and the voltage is VL. So now for practical current source, if I want to write equation, okay, so writing KCL, IS equal to, so IL, I want IL, so IL will be this current minus this current, okay. So IL will be now IS minus, इसमें क्या कुछ भी करंट बोल दो, IP बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसमें कितना करंट जाएगा बताओ? IS minus IS into RI upon RP plus RI. RP plus RL। इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL और रेजिस्टेंस कितना है? VL। तो करंट कितना हो जाएगा? VL upon RP. VL upon RP, okay. So VL upon RP, this is the equation for current source, okay. अब इसको ड्रॉ करते हैं। करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब हमको चाहिए IL बाय VL, IL वर्सेस VL ग्राफ, ओके। दिस इज सर VL, दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस है ना? दोनों पैरेलल है। तो सर ये करंट तो थोड़ा सा मतलब करंट डिवीजन रूल लगेगा ना इसमें? हाँ, करंट लगेगा ना, तो भी हमको चाहिए IL, तो यहाँ से IS आ रहा है, तो IS माइनस दिस करंट, ये करंट कितना है? यस सर। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओके सर। ठीक है। नाउ आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल केस में यहाँ पे RP नहीं होता है, ठीक है। तो आइडियल केस में ये ओपन सर्किट है, आइडियल केस में ये क्या है? ओपन सर्किट है, तभी तो करंट नहीं आ रहा इधर। आइडियल केस में या तो हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, या ये ओपन सर्किट होता है। दैट मींस RP इज इनफाइनाइट इन आइडियल केस। यहाँ पे RP इनफाइनाइट रख दो तो IL इक्वल टू IS, ओके। सो यू विल गेट ऑलवेज कांस्टेंट करंट, ओके। तो दिस इज आइडियल केस जो मैंने पहले ड्रॉ किया था,
उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस नहीं था मतलब ओपन सर्किट था। ओके, दिस वाज आइडियल केस। नाउ इन प्रैक्टिकल केस यू कैन सी, जैसे जैसे अगर मैं इसको कर दूं VL को 0 कर दूं तो मेरा IL हो गया IS। ओके, सो दिस लाइन हो गया, ठीक है। और अगर मैं IL को 0 कर दूं तो मैं, अगर IL को 0 कर दूं तो मैं VL विल बी IS RP। okay, so this is my ideal source and this is my practical source. Okay, practical current source. Okay, so जितना कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल का मतलब है कि कांस्टेंट करंट नहीं देगा सर्किट में, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देगा सर्किट में, जो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस वाज आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स। नाउ आई एम बी कमिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या है। ओके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, आगे चले, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। Now what is source transformation theorem says? Source transformation theorem says that a voltage source plus minus, okay, Vs, इसके अक्रॉस, इसके पहले सीरीज में एक रेजिस्टेंस R है, okay, that is equivalent, okay, that is equivalent to a current source, okay, current source with resistance in parallel, on parallel resistance RS, R, this is IS, okay, so this is, they are equivalent, okay, that means आप सर्किट में करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, that means you can, if it's like this you can write this way। अब क्वेश्चन है कि इसमें IS और VS के वैल्यू क्या है। ओके, तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है मतलब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट आउटसाइड लोड के लिए इफ आई प्लॉट हियर वन लोड RL, ओके, इफ आई प्लॉट, तो अगर, हाँ, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ओके, इस लोड के लिए सपोज आई एम गेटिंग करंट हियर IL एंड माय वोल्टेज इज हियर VL, ओके, और यहां पर भी मेरा करंट जो है वो IL है और वोल्टेज मेरा जो VL है, ओके, वोल्टेज इज VL। तो अगर मेरे लोड में जो करंट आ रहा है वो सेम है, लोड का क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो ये दोनों सर्किट सेम है। ओके, भी हमको लोड को मतलब है कहां से करंट आ रहा है, कहां से वोल्टेज आ रहा है, कहां से करंट आ रहा है, उसको ये मतलब नहीं कौन दे रहा है। ओके, फाइनल फंक्शन क्या है, मुझे लोड पे सेम करंट चाहिए, सेम वोल्टेज चाहिए। तो अगर मैं मेरे लोड पे करंट IL आ रहा है, वोल्टेज VL है, इस केस में भी और इस केस में भी, देन दीज टू सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, पर इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या है वो भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये IS R है, ये VS R है। ओके, नाउ इस केस में KVL लिखो, VL कितना है, VL कितना हो जाएगा, तो VL हो जाएगा आपका VS, करंट कितना है, प्लस IS इनटू R प्लस RL इंटू RL, ठीक है। यस यस सर। इस केस में VL कितना है, ओके, ये करंट आ रहा है, यहाँ से IS करंट आ रहा है, करंट डिवीजन लग जाएगा, ठीक है। यस सर, IL इनटू RL। तो करंट डिवीजन लग जाएगा, तो रेजिस्टेंस लेंगे इसका R, टोटल रेजिस्टेंस R अपॉन R प्लस L, ठीक है, इनटू टोटल करंट IS, ये तो हो गया करंट, और इनटू RL, ठीक है, करेक्ट है ये? यस सर। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। नाउ ये अब ये दोनों सर्किट बराबर कब होंगे? ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे RL है, यहाँ पे RL है, ठीक है, यहाँ पे R प्लस RL है। ओके, सॉरी, यहाँ पे पहले तो उसका हम इसको कर देते हैं RS कर देते हैं, जो अगर जो इनिशियली हमने यूज किया था टर्मिनोलॉजी RP। ओके, तो ये हो जाएगा, कैपिटल कर दो RP, ये सीरीज रेजिस्टेंस RS। ओके, सो यहाँ पे हमारा है RS, यहाँ है हमारा RP। ओके, नाउ ये तो पहली कंडीशन क्या है कि ये RP शुड बी इक्वल टू RS। ओके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ओके, तो RP शुड बी RS, मतलब रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक तो चीज है। सेकेंड थिंग इज देयर योर VS हियर, यहाँ पे जो VS है
should be equal to ISRL. ISRL, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं? ये चेक करो नहीं। तो। करेक्ट है सर। नहीं सर सही है सर। सो सपोज आई नो, हमने करंट यहाँ पे लिखा था ना, करंट यहाँ VL, सो VL अक्रॉस दिस वन लिखा था, तो मैंने रजिस्टर लिया था RL, ओके, रजिस्टर लिया था मैंने RL और R प्लस RP लिखा था, ठीक है। यहाँ पे RP आएगा ना, यहाँ पे RP आएगा ना, RP यहाँ पे RL आएगा। नीचे भी आर कहाँ से आ गया? आर कोई है ही नहीं। आर हाँ, एक भी भाई ये यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये आईएस आ रहा है, मुझे चाहिए करंट इसमें, ओके, तो रजिस्टर विल टेक दिस वन, ओके, RL, ओके, वो RL, ओके, देन R प्लस RP एंड करंट आ गया, इसमें वोल्टेज चाहिए, ओके, तो ये RP आएगा ना, नहीं क्या? नहीं, लोड के क्रॉस ले रहा है ना। वो दोनों सेम ही है ना। अच्छा ये लिखो सेम ही है। सर नीचे जो लिखे हैं RL बाय R प्लस RP, R RP की जगह RL होगा, R यहाँ पे RL होगा, अच्छा, दोनों जगह RP प्लस RL होगा। RP प्लस RL, ओके, वेरी गुड। इधर भी ऐसे ही होगा, इधर RS प्लस RL, वेरी गुड, ये मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, RP शुड बी इक्वल टू RS, ओके, फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन शुड बी VS शुड बी इक्वल टू IS RP, और क्योंकि RP इक्वल टू RS है तो यू शुड बी IS इक्वल टू RS, ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तभी यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोर्सेस। इसका मतलब क्या है, ये लिख लिया आपने, ओके। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर मेरे पास में 5 एम्पियर का सोर्स है, 5 एम्पियर सोर्सेस है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास दो ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होगा? द करंट सोर्स विल बी IS, ओके, IS इक्वल टू VS बाय RS। तो VS बाय RS, ओके, दैट मींस दिस करंट वैल्यू शुड बी 5/2, दैट इज 2.5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस सेम रखना है, RS प्लस RP, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम रखना है 2 ओम। तो दिस इज योर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो करना क्या है कि यू हैव वन सोर्स प्लस VS, ओके, जिसके एक सीरीज में रेजिस्टेंस है R, ओके, यू कैन रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स बाय ए करंट सोर्स IS whose value is VS upon R, okay, with a resistance parallel to this current source जो कि R है, okay, इतना ही है, okay। जैसे यहाँ पर 5 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये सेम रहेगा। So in circuit you can transform a voltage source into current source, खाली इतना याद रखो, okay। यहाँ पर VS क्या है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में डिवाइड करना है, तो करंट पता है, ओके, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा IS, ओके, IS इंटू R। जैसे यहाँ पे अगर 2.5 है और ये 2 है, तो वोल्टेज वहां कितना हो जाएगा 5, 2.5 इंटू 2 5, और रेजिस्टेंस आ जाएगा। दैट मींस ए बैटरी with resistance series can be replaced by a current source across which a resistance is in parallel, okay। So we'll do one problem, okay, ये क्लियर है? यस सर। ये थ्योरम आपको याद रखना है, okay। That means a voltage source with resistance series can be replaced by a battery with parallel resistance R, okay। दोनों का internal resistance सेम है, ओके, और ये रिलेशन वैलिड है, तभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। ओके, सो विल डू क्विकली वन स्मॉल प्रॉब्लम। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कई बार आपके क्वेश्चन है ना, खाली इसी से लग जाते हैं, सारा सर्किट इसी से सॉल्व हो जाता है, ओके। सो इसको लगाते समय यू नीड टू रिमेंबर समथिंग आल्सो, ओके। So this is if we have sources in
sources in parallel. Suppose this is my I1, this is my I2, and this is my I3. Okay, I told you you can write this, you can replace this circuit by a equivalent current source I total, which is I1, okay, minus I2 plus I3. Okay, so if sources are in parallel, you can write a combined source. Okay, solve करने के लिए. Similarly, if voltage sources are in series, if voltage sources are in series, then you can also combine them by using KVL. ये तो KCL से हो गया ना. भाई टोटल करंट कितना आ रहा है यहाँ पर, IT कितना आ रहा है. ओके, I1 आ रहा है. ओके, I3 आ रहा है, I2 जा रहा है. ओके, so I1 positive, I3 positive, I2 is leaving, so I2 is negative, so IT equal to I1 plus minus I2 plus I3. Okay, this is current, this is KCL. Okay, now similarly, if they are voltage, these are in parallel. Okay, similarly, if voltage sources are in series, okay, so this is V1, V2, V3. Okay, so these sources can be replaced because they are in series. Okay, we can write combined source. Okay, plus minus V total, V1 plus V2 minus V3. V1 plus V2 minus V3. V3. Okay, you can apply KVL and you can check. The KVL apply करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V3 minus V2 minus V1 equals to 0. Okay, ये होगा क्या KVL में? अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो फाइनली ये इनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा. जो सर्किट में इसको लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, तो फाइनली ये जुड़ जाते हैं. तो इसकी जगह पे हम इनको कंबाइंड V टोटल लिख देंगे. ठीक है. So this thing you have to remember while applying source transformation. Okay, now we'll write one problem. Okay, so we have one 9-volt battery. Okay, one 2 ohm and one minus plus 9-volt battery. Okay, I have one more current source here of 10 milliampere. Okay, and there I have one resistance of 4 ohm. Okay, now you have to simplify this circuit. Okay, और आपको इसको इस फॉर्म में लाना है, IS into RS, RP जो भी रेजिस्टेंस है. You have to simplify the circuit and you have to bring in this form and tell me what is the value of IS and R. Okay, so this is your homework. Okay, because we need to do 3-4 problems. Okay, tomorrow I'll start from again from source transformation. So this is your homework. Okay, so let me check circuit is correct. Okay, this is 9 4 2 10 4. Okay, so this is your homework. Okay, इस सर्किट को आपको सिंपल सर्किट में लाना है. You have to convert this circuit into a simple circuit which has only one source and one resistance. Then you have to apply source transformation. Okay, source transformation मतलब क्या है? ये आपका लगा हुआ है माइनस प्लस वोल्टेज प्लस बैटरी. ओके, इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो. ओके, इसको भी आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. इधर करंट सोर्स कर सकते हो. तो फाइनली करंट निकालो, टोटल करंट कितना आ रहा है पैरेलल वाला, एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ रहा है वो निकाल लेना है. ठीक है, बट यू टू रिमेंबर वन थिंग. अगर सर्किट में जैसे ये माइनस प्लस है, बैटरी ऐसा है, ठीक है, तो करंट सोर्स जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा. ठीक है सर. और अगर प्लस माइनस है तो करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा वैसे होगा. अगर ऐसे करंट सोर्स है तो फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा. ठीक है, और यहाँ है तो फिर इधर लगेगा. So direction you have to keep in mind. Tomorrow we'll discuss again. Okay. Sir, I have a small doubt. हाँ.
सर ये वाला जो सर्किट है जो बना है सिर्फ हम्म। IS और ए सर्किट सर, हाँ ये हाँ राइट हैंड साइड, हाँ वहां सर IS को चेंज कीजिए वोल्टेज सोर्स से, क्वेश्चन सर चेंज कीजिए वोल्टेज हाँ सोर्स। हाँ ठीक है, VS प्लस माइनस VS हाँ एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में, रेजिस्टेंस लगा दीजिए सीरीज में, सीरीज एक में, ही हाँ रेजिस्टेंस। हाँ हाँ तो लूप क्लोज कर दीजिए, सर्किट क्लोज कर दीजिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ। क्लोज कर दो सर- ऐसे। सर 1 मिनट हम्म। सर VS प्लस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्लस टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है। यहाँ पर नो सर, प्लस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, यस सर, यहाँ पर प्लस माइनस लिख दीजिए। कहाँ पर, यहाँ पर, यस सर, हाँ प्लस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस हाँ। एंड प्लस टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, हाँ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना? इन दोनों के बीच में, यस सर। तो वोल्टेज Resistance डिफरेंस और 0 क्या हुआ, अभी कुछ ड्रॉप ही नहीं हुआ। जब तक ये वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप नहीं होगा तब आगे आएगा ना, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। यस सर, यस सर। हाँ तो देन सर वही पूछ रहे हैं सर, जीरो कैसे होगा? करंट क्यों बढ़ रहा है जब जीरो के भी यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज VS ही है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज VS ही है, फिर यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तब ड्रॉप होगी। ये तो क्षेत्र, सर वहाँ करंट बढ़ क्यों रहा है? डिफरेंस नहीं है। हाँ? वहाँ करंट क्यों फॉलो हो रहा है वहाँ पे? भी वोल्ट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस पे फॉलो हो रहा है ना। यहाँ तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, करंट तो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है ना। बट सर उस बीच में मैं पूछ रहा हूँ, उस बीच में तो ये सेम ही चीज है, यहाँ पे भी VS है, यहाँ पे भी VS है, ये सब पूरा VS है, यहाँ पे 0 है। जब वोल्टेज डिफरेंस आएगा तभी करंट फ्लो होगा। तो वो तो समझ आ रहा है सर, वहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है सर? सेम करंट यहाँ क्यों फॉलो हो रहा है? यहाँ पे मतलब यहाँ पे यहाँ पर यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम इसी पार्ट को देखें तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है। तुम बोल रहे हो कि ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ क्यों फ्लो हो रहा है? सर ही सेइंग कि जो Yes, वायर sir. हम यूज कर रहे हैं हाँ। वो 0 रेजिस्टेंस की है, तो फिर हाँ। वहां पे करंट फ्लो ही क्यों हो रहा है? अरे तो वो तो सीरीज में है ना, जो भी रेजिस्टेंस है सपोज 0 है तो साथ में कुछ तो ऐड है, वो तो सीरीज में ही है। वो ये तो हम सिस्टम स्कीमेटिक डायग्राम में हम ड्रॉ करते हैं ना, हाँ, ऐसा हाँ। थोड़ी होता है कि कोई वायर रेजिस्टेंस फ्री हो। हाँ ऐसा होता थोड़ी है रियलिटी में, रियलिटी में नहीं ये तो होता सिर्फ है। स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ये रेजिस्टेंस का वायर तो यहाँ जोड़ा है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के हाँ। पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो ये जिसको रेजिस्टेंस ये कह रहे जो ये रेजिस्टेंस है उसी को तो यहाँ पे ऐड किया है हम लोगों ने। यस सर, वो उसी में कंफ्यूज हो रहा है कि उस वायर में करंट ही क्यों फ्लो हो रहा है अगर रेजिस्टेंस ही नहीं अच्छा, है तो। तो ये तो पूरा रेजिस्टेंस ही है। आप इसको तो 0 मानते हैं, भी जो टोटल है वो RL हम दिखाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली तो ये पूरा का पूरा ये RL है। यस ठीक है। यस सर, बट जब कनेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ तो कनेक्ट कर लो, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है तो करंट तो फ्लो होगा ना। क्लोज तो करना ही पड़ेगा सर्किट को। हाँ सर, वहाँ पे ये कौन बोल रहा था? दीपक बोल रहा था कि मतलब ये जो पोटेंशियल जो कनेक्ट है पूरा रेजिस्टेंस है, आइडियल केस भी तो हो सकता है सर, थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। आइडियल केस क्या होता है सर? आइडियल केस का मतलब रेजिस्टेंस लेस है वायर। रेजिस्टेंस लेस वायर में हो सकता है क्या? कोई मटेरियल ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर? क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं हम। कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है वायर के पास, जो हम रेजिस्टेंस तो हम तो इसका तो ले रहे हैं, पूरा रेजिस्टेंस तो ले रहे हैं ना, ठीक है। अब वो सर्किट में तो ऐसे मान के चलेंगे क्योंकि कुछ है नहीं है जो अब सर्किट में बिना जोड़े कैसे दिखाऊंगा मैं उसको? कैन वी शो दिस इज अ डिस्कनेक्टेड सर्किट, ओके, समथिंग वी हैव टू कनेक्ट ना, ओके सर, दैट्स व्हाई समथिंग वी आर कनेक्टिंग, दैट्स व्हाई वी सेइंग इट इज 0, ओके।
Okay, So can I conclude here? Sure. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.